بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو وائس ڈائری میں تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ آج کی میری یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی انوکھی آپ بیتی ہے جو جبراً محبت کے حصول کے لیے کوشاں تھی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس کو ہمارے معاشرے میں امیر طبقہ اور ماڈرن کلاس کہتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے آگے پیچھے پیسوں کی فراوانی دیکھی، کسی دکھ یا غم کا تصور بھی نہیں تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی، ہر طرح کا عیش و آرام میری زندگی میں تھا۔ میں اپنی امی ابو کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ میری ہر فرمائش منٹوں میں پوری ہو جاتی تھی، اس لیے میں خود کو اوروں سے الگ اور بہتر سمجھتی تھی۔ میرے دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ میں ہر کسی کو اپنا ماتحت اور غلام سمجھتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن بھی بے پناہ دیا تھا جس کا مجھے بے حد غرور تھا۔ کالج میں بھی میں انہی لڑکیوں سے دوستی کرتی تھی جو میری طرح امیر تھیں، اور کالج میں صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتی تھی، کیونکہ میرے لیے کالج پڑھنے کی نہیں سیر و تفریح کی جگہ تھی، اور کالج کے سارے لڑکے میرے حسن اور سٹیٹس کے دیوانے تھے۔ کالج کی لڑکیاں مجھے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتی۔ میں کسی لڑکے کو تو کیا کسی لڑکی کی بھی عزت نہیں کرتی۔ کالج کے سارے لڑکے میرے آگے پیچھے گھومتے اور مجھ سے بات کرنے کو ترستے۔ پھر ایک دن ہمارے کالج میں ایک لڑکا آیا، مجھے وہ پہلی ہی نظر میں بہت پسند آیا۔ میرا خیال تھا وہ بھی میرے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ جائے گا۔ میں اسے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی، جبکہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ میرے حسن سے بے نیاز اپنے آپ میں مگن رہتا۔ مجھے اس کی اسی عادت نے دیوانہ بنا دیا، اور اسے حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد بن گیا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن وہ میری بات کا جواب ہوں یا ہاں میں ہی دیتا۔ میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے اس لڑکے کا نام سکندر ہے۔ اس کا باپ کسی چھوٹی سی کمپنی میں کلرک ہے۔ سکندر کی 2 چھوٹی بہنیں بھی ہیں، اور کالج کے بعد شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے، اور آج کل پارٹ ٹائم نوکری کی تلاش میں ہے۔ میں نے سکندر کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مالی طور پر فائدہ پہنچانے کا سوچا۔ میں اسے اپنے پیسوں سے خریدنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے ابو سے سکندر کی نوکری کی بات کی تو ابو نے ہمیشہ کی طرح میری یہ فرمائش بھی پوری کر دی۔ دوسرے ہی دن میں سکندر کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے پہنچی۔ یہ خبر سنتے ہی سکندر بے انتہا خوش ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ اتنی بڑی کمپنی سے میرے لیے کام کی آفر لے کر آئیں گی، اور میری اتنی بڑی مشکل اتنی آسانی سے حل کر دیں گی۔ اس کے بعد سکندر نے میری عزت کرنا شروع کر دی۔ وہ مجھ سے جب بھی بات کرتا نگاہیں جھکا کر بات کرتا۔ ان سب چیزوں کے بعد مجھے اپنی جیت بہت قریب دکھائی دینے لگی۔ میں دن بدن سکندر کے پیار میں پاگل ہونے لگی، لیکن سکندر کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب وہ میرے احسان تلے دب جائے اور میرے اظہار محبت کرنے پر وہ انکار نہ کر سکے۔ ایک دن جب سکندر سے ملنے میں ابو کے آفس پہنچی تو وہ وہاں نہیں تھا۔ مینیجر نے مجھے بتایا کہ کل سکندر صاحب کی شادی تھی، اس لیے وہ چھٹیوں پر ہیں۔ یہ خبر میرے لیے کسی بڑے دھماکے سے کم نہ تھی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ یہ بات میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی، اور میری حالت کسی دیوانے سے کم نہ تھی۔ سکندر کو حاصل کرنا میرا جنون بن چکا تھا۔ میں کسی صورت سکندر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کی محبت میں اتنا آگے جا چکی تھی کہ پیچھے پلٹنا اب ناممکن تھا۔ میں اس کی بیوی سے مل کر یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک دن بغیر بتائے میں سکندر کے گھر چلی گئی۔ بہت پرانا گھر تھا، میرا تو دم گھٹ رہا تھا۔ سکندر نے اپنی بیوی سے ملوایا۔ اس کا نام نسرین تھا، اور وہ سکندر کی چچا زاد کزن تھی۔ وہ بہت عام سی لڑکی تھی۔ میں نے اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں دیکھی کہ سکندر جیسے خوبصورت انسان کی وہ بیوی کہلائے۔
सिकंदर और इसकी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत से मिले। मुझे नसरीन से बेइंतहा नफरत महसूस होने लगी। इसीलिए सिकंदर के लाख रोकने पर भी मैं बिना कुछ खाए पिए सिकंदर के घर से लौट आई। सारे रास्ते सिकंदर और नसरीन के बारे में ही सोचती रही। मैं जितना सोचती इतनी ही नफरत नसरीन के लिए मेरे अंदर पैदा होने लगती। इसी दौरान अचानक मेरी नजर सड़क पर लगे एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था, आपके हर मसले का हल सिर्फ मेरे पास मौजूद है। मैंने वहीं अपनी गाड़ी रोक दी और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। अंदर दाखिल हुई तो देखा कमरे के कोने में काले कपड़ों में मलबूस एक औरत बैठी है, जो शक्ल से काफी अधेड़ उम्र लग रही थी। उसके गले में मुख्तलिफ किस्म की माला थी। उसके आगे पीछे काफी लोग जमा थे। मुझे देखते ही उस औरत ने हाथ के इशारे से लोगों को जाने का कहा। मैंने तफसील से उस औरत को अपने और सिकंदर के बारे में बताया और नसरीन के बारे में भी बताया, और ये भी कहा कि मैं सिकंदर को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। उस औरत ने मेरी बात गौर से सुनी और दूसरे दिन आने को कहा और मुझे यकीन दिलाया कि बहुत जल्द सिकंदर तुम्हारा होगा। मुझे उस औरत की बातों में सच्चाई नजर आई। मैं दूसरे दिन का वादा करके चली आई। पता नहीं क्यों मुझे उस औरत से बात करके यकीन हो गया था कि सिकंदर अब सिर्फ मेरा होने वाला है। उस रात मुझे सुकून से नींद आई थी। दूसरे दिन मैं मुकर्ररा वक्त पर उस औरत के पास पहुंच गई। आज वो कमरे में अकेली थी। वो कुछ देर आंखें बंद किए बैठी रही, फिर मुस्कुराकर मुझसे मुखातब हुई। उसने मुझसे सिकंदर की बीवी की एक तस्वीर और एक शलवार कमीज का जोड़ा लाने को कहा और बताया, ये अमल काफी मुश्किल है। अगर तुम ये अमल करवाने पर राजी हो जाओ तो अगले 6 महीने बाद चांद की 14वीं तारीख को 4 दिन ये अमल मुसलसल करना होगा और अमल के लिए शहर से दूर एक वीरान इलाके में जाना होगा। इस अमल को करने की कीमत 1 लाख रुपए होगी, लेकिन इस अमल के बाद सिकंदर की जिंदगी सिर्फ तुम्हारी होगी। अगर तुम्हें मंजूर हो तो अगली बार पैसे लेती आना। मेरे लिए 1 लाख रुपए की तो कोई अहमियत ही नहीं थी, लेकिन फिक्र मुझे इस बात की थी कि 4 दिन के लिए अपने अब्बू से क्या कहूंगी। और दूसरा मसला मेरे लिए सिकंदर की एक तस्वीर और नसरीन की तस्वीर और इसका जोड़ा था, जिसको हासिल करना मेरे लिए काफी मुश्किल था। इसीलिए उस वक्त औरत की बात सुनकर खामोशी से लौट आई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए मैं उस औरत के पास दोबारा नहीं गई। लेकिन सिकंदर को भुलाना मेरे लिए नामुमकिन था। अपनी हार का सोचकर उसे हासिल करने की तमन्ना मेरे अंदर बढ़ती ही जा रही थी। मैं महसूस कर रही थी कि वक्त के साथ साथ मेरी दीवानगी में इजाफा होता जा रहा था। खैर, वक्त को गुजरना होता है और वो गुजर गया। फिर 1 साल बाद एक खबर ने मेरे अंदर तबाही मचा दी कि नसरीन ने एक बेटी को जन्म दिया है। अब तो मैं नसरीन को सिकंदर की जिंदगी से निकाल कर दूर फेंकना चाहती थी। मैं उसकी बेटी की पैदाइश की मुबारकबाद देने के बहाने उनके घर गई और उनसे शादी की तस्वीरें देखने की फरमाइश की तो सिकंदर ने फौरन अपनी शादी का एल्बम निकाल कर ले आया। मैं तस्वीरें देखते हुए बड़ी चालाकी से उनकी एक तस्वीर छुपा ली। मैंने सिकंदर से कहा, नसरीन के लिए अपने दर्जी से एक सूट सिलवा कर देना चाहती हूँ। मुझे नाप के लिए नसरीन का एक सूट दे दो। पहले तो सिकंदर ने मना किया, फिर मेरे इसरार करने पर नसरीन का एक जोड़ा दे दिया। इन चीजों को लेकर मैं फौरन उस आमिल औरत के पास पहुंची। वो मुझे देखकर समझ गई मैं किस लिए आई हूँ। मुझे देखकर कहने लगी, मैं तो समझी थी तुमने अपना इरादा तब्दील कर लिया, क्योंकि इस बात को किए हुए 1 साल गुजर गया। मैंने औरत से कहा, तुम जितना जल्दी हो सके मेरा ये काम कर दो। मैं नसरीन को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर उसने अगले दिन सुबह 8 बजे का वक्त दिया था। वो सारी रात मैंने करवटें लेते हुए गुजारी। दूसरे दिन मैं अब्बू से दोस्त की शादी में शिरकत का बहाना करके 4 दिन के लिए उस औरत के पास पहुंच गई। पैसे लेने के बाद उस औरत ने कुछ सामान इकट्ठा किया और हम 2 आदमियों के हमरा दूसरे शहर रवाना हो गए। आबादी से काफी दूर सुनसान इलाके में औरत ने गाड़ी रोकने का इशारा किया। वहां करीब ही एक झोंपड़ी बनी हुई थी। औरत ने पहले से ही झोंपड़ी में सारा इंतजाम कर रखा था। फिर वो दोनों आदमी कहीं चले गए और हम दोनों झोंपड़ी में दाखिल हो गए।
झोंपड़ी में पहले से ही मुख्तसर सा सामान मौजूद था, जैसे चादर, मटका, लालटेन वगैरह। चीजों को देखकर ये अंदाजा हो रहा था जैसे यहाँ कोई रहता हो। रात 12 बजे के करीब औरत ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे तक पता नहीं क्या पढ़ती रही। इसके बाद उसने एक नोकीला खंजर निकाला और इस तस्वीर को दरमियान से काट दिया और फिर हम झोंपड़ी में ही सो गए। अगले दिन सूरज निकलने के बाद उठे तो वही 2 आदमी जो हमारे साथ आए थे हमारे लिए नाश्ता देकर चले गए। इसके बाद सारा दिन कोई पढ़ाई नहीं हुई। सारा दिन बोर गुजर गया। फिर रात 12 बजे औरत ने दोबारा अपना अमल शुरू कर दिया और नसरीन के कपड़ों पर कुछ पढ़ पढ़ कर फूंकती रही। सुबह 4 बजे अमल खत्म करके हम फिर सो गए। अब अमल की तीसरी रात थी। उसने उसी खंजर पर कुछ पढ़कर फूंका और खंजर की नोक मेरी उंगली में खोप दी। मेरे हलक से तकलीफ के बायस एक जबरदस्त चीख निकली। मेरी उंगली से बहता खून वो एक प्याली में जमा करती रही। जब प्याला भर गया तो मेरी उंगली पर एक कपड़ा बांध दिया। तब उसने नसरीन की कमीज मेरे खून में भिगो दी। सुबह 4 बजे अमल खत्म हो गया। उस औरत ने खुशखबरी सुनाई कि हमारा अमल 3 दिन में ही कामयाब हो गया। हमें अभी वापस जाना होगा और नसरीन की कमीज को किसी कब्र में दफन करना होगा। अब सिकंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। कब्रिस्तान में नसरीन की कमीज दफनाई और हम वापस आ गए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आज जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हो। सारी दुनिया आज अपने कब्जे में महसूस होती दिखाई दे रही थी। मैं पुरसुकून होकर सो गई और जब उठी, तैयार हुई और सिकंदर के ऑफिस गई तो पता चला आज सिकंदर काम पर नहीं आया। फिर मैंने गाड़ी सिकंदर के घर की तरफ मोड़ दी। वहां पहुंची तो काफी लोग जमा थे। मेरे पूछने पर पता चला कि सिकंदर की बीवी का इंतकाल हो गया है। कल रात उनको जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गई। मैं उसी शाम आमिल औरत के पास पहुंची और उसे ये खुशखबरी सुनाई। आमिल औरत ने कहा, अब थोड़े ही दिनों में सिकंदर खुद तुम्हारे पास चल कर आएगा। उस औरत की बात बिल्कुल सच साबित हुई। सिकंदर वाकई मेरा दीवाना हो गया था। अब सिकंदर भी मुझसे मिलने को बेचैन रहता। मुझसे शादी करने के लिए वो मेरी मिन्नतें करने लगा। मैं तो कब से इसी इंतजार में थी और हमारी शादी हो गई। शादी के 4 साल गुजर गए, लेकिन अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से महरूम रखा। लोग मुझे बेऔलादी का ताना देते। मैंने औलाद के लिए बहुत दुआएं की और मन्नतें मांगी। तब जाकर अल्लाह ताला ने मुझे बेटे से नवाजा। लेकिन बेटा देने के साथ साथ मुझे अपाहज बना दिया। बेटे की पैदाइश के बाद मेरे पूरे जिस्म ने काम करना छोड़ दिया। डॉक्टरों के मुताबिक मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस मेरा सारा जिस्म मफलूज होकर रह गया है। आज मेरा बेटा पूरे 25 साल का हो गया है और मैं गवर्नमेंट अस्पताल के एक कोने में पड़ी हूँ। इतने सालों बाद भी मेरे जिस्म ने कोई हरकत नहीं की। अब तो लेटे लेटे मेरी कमर गलने और सड़ने लगी है। ये बीमारी मेरे गुनाहों का नतीजा है और उन लोगों के लिए एक इबरत है जो हमेशा दूसरों का बुरा सोचते हैं। मेरे शोहर और बेटे ने तो बरसों से मेरी कोई खबर नहीं ली, क्योंकि वो भी औरों की तरह मुझसे घिन खाते हैं। अलबत्ता कभी कभार नसरीन की बेटी मुझे आकर देख जाती है। बहुत अच्छी लड़की है और जाहिर है उसकी रगों में एक अच्छी और नेक औरत का खून गर्दिश कर रहा है। मुझे अपने बेटे से भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसकी रगों में मेरा ही खून गर्दिश कर रहा है। मैंने अपनी ये कहानी एक नर्स को सुनाई और उससे वादा लिया कि तुम ये कहानी दूसरों तक जरूर पहुंचाओगी, ताकि लोग इससे इबरत और मोहब्बत को जबरदस्ती या जबरन हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की हदूदों की हूद को पार ना करें। मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तो बहुत माफी मांगती हूँ, लेकिन जिसके माफ करने पर मेरी बख्शिश हो सकती थी वो तो इस दुनिया में ही नहीं रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।